जो एम्स उन्होंने अचीव किए थे उनकी बात करते हैं। अब टॉपिक आप अपना लिखें, टॉपिक इज रिजल्ट्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है मुस्तफा, रिजल्ट्स ऑफ war of independence. If we talk about the results of war of independence, so overall result of war was failure of overall result of war was failure of Indians. फेलियर ऑफ इंडियंस। बेटा इंडियन फेलियर्स में क्या मेन चीज है कि व्हाट वाज द थिंग दे कुड नॉट अचीव इन दिस वॉर, क्या अचीव नहीं कर सके थे इंडियंस जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो फेल हुए। दे कुड नॉट अचीव इंडिपेंडेंस, वेरी गुड, दे कुड नॉट अचीव इंडिपेंडेंस। इज इट क्लियर बेटा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, is it clear to all of you? They could not achieve independence in this war, that's why it was a big failure. Is it clear? But now the thing is, which type of question examiner can give you regarding this portion? हमारे पास जो questions आ सकते हैं, the first main question on the results of war of independence is कि Indians achieved nothing in war of independence. Indians achieved nothing in war of independence. Do you agree or disagree? Give reasons. Yes, beta. Beta, Indians achieved nothing in war of independence. कुछ भी इंडियंस ने अचीव नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि इंडियंस ने वॉर की हो और कोई भी इंसान 100% आपके नजदीक वो फेलियर भी नजर आ रहा हो, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव होप और सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग वो कहा जाता है ना, एक कोटेशन है, देयर इज अ कोटेशन दैट एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग इन इट। तो हर चीज के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज हो सकती है। एवरीथिंग हैज पॉजिटिव रिपरकशंस, उनका रिजल्ट समटाइम्स पॉजिटिव होता है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसके अलावा सिंपल स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ सक्सेसफुल वाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हाउ सक्सेसफुल वाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस in 1857? Explain. Yes beta, how successful was war of independence in 1857? अब whenever there is a word how successful, जी बेटा, whenever there is a word how successful, which two things must be in your answer? जी बेटा आप में से कौन बताएगा which two things must be in your answer whenever the word is how successful? Yes Rafi. Yes सर के उनके उसका रिजल्ट जैसे सक्सेसेस और फेलियर्स। yes, there must be two things in your answer. The first is results में the successes, and the second thing in the result is failures. You need to write the successes and failures. Yes beta. Anyone else? Okay, how successful was war of independence? अब Indians ने on paper we can say the war was a big failure, but still there were few successes in it. अच्छा, अभी जो मैंने कल परसों आपका हिस्ट्री का टेस्ट लिया और उसमें मैं चेक कर रहा था, जो हिस्ट्री के टेस्ट में अक्सर बच्चों का आंसर में 12, 11, 10 नंबर आए हैं, ऑल्दो कि उन्होंने वो एज इट इज याद करके लिखा था। बेटा देयर वाज समथिंग मिसिंग इन दैट एलिमेंट। वो क्या एलिमेंट था जो मिसिंग होता है, वो कभी भी किसी भी दुनिया के नोट्स में नहीं होगा। हर क्वेश्चन का एक सेपरेट लिंक बनता है उसके साथ।
every question has a separate link with the question statement. Like अगर मैंने ये वर्ड लिखा है कि ये सक्सेस है, तो should I explain that how this was a success for Indian? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर मेरे आंसर में ये जस्टिफिकेशन ना हो, मैंने लिख दिया कि लाइक फॉर इंस्टेंस आई एम राइटिंग के इंडियंस, ये एक सक्सेस मैंने लिखा, मैं आपके सामने एक सक्सेस लिखता हूं, इंडियंस गॉट मोर religious liberty after War of Independence as announced by the British. Would you please tell me, is this the complete justification for the success? Is this thing showing that it was a success? मतलब ये point लिखने में तो हमें success लग रहा है. Is it justified that this was how it was a success? मैंने ये proof नहीं किया अभी तक कि ये किस तरीके से success. As Indians या as Indians fought War of Independence to get their rights as British snatched religious liberty by their policies like banning of Parda system, hence when British proclaimed in 1857 58 act that they would not interfere in religious belief of Indians, in religious beliefs of Indians, it was success of India. It was success of Indians. बेटा अब मुझे बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस द कंप्लीट जस्टिफिकेशन ऑफ द वर्ड सक्सेस? बिल्कुल है. इसमें ये कंप्लीटली जस्टिफाई किया है मैंने कि ये चीज सक्सेस कैसे थी, कैसे ये रिलीजियस लिबर्टी आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश ने कैसे अनाउंस किया. ब्रिटिश ने ये पहले ये बैन किया था पर्दा सिस्टम, इसको जब ब्रिटिश ने खुद अनाउंस किया कि प्रोक्लेमेशन एक्ट में कि हम लोग इंडियंस के बिलीफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो दिस थिंग शोज दैट इट वाज सक्सेस ऑफ इंडिया. दे अचीव्ड वन ऑफ देयर मेजर एम ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडियंस का वॉर करने का सबसे बड़ा एम क्या था? टू गेट द रिलीजियस फ्रीडम. So when they got that religious freedom, can we say that it was a success? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके आंसर्स में पॉइंट्स, ये जो अभी आपका आंसर आप लोगों ने लिखा था इस फ्राइडे को टेस्ट के अंदर, बेटा द क्वेश्चन आंसर व्हिच यू पीपल हैव रिटन दिस फ्राइडे, आप लोगों ने इस तरीके से आंसर को सक्सेस के एलिमेंट को जस्टिफाई नहीं किया हुआ. वो कुछ बच्चों ने यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं थी, जिसकी वजह से आपके 10 या 11 नंबर आए. जी क्या करना जरूरी था, वो टेस्ट का पार्ट था. आई नो. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? बेटा आप लोगों को सबको क्लियर हुआ कि एक सक्सेस को जस्टिफाई करना कितना जरूरी है?
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर्वा, इशल, लाइन हार्ड, मिनाल, महम, is it clear to all of you? Musa, Yes, sir. Nasir, Rafi, Salma, Saniha, everyone, Yes, is sir. it clear? नेक्स्ट वन है, एक और हम सक्सेस की एलिमेंट की बात करते हैं। सक्सेस का एक और एलिमेंट क्या है? अदर सक्सेस। अब बाकी मैं इतनी लंबी लंबी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बाकी मैं सिर्फ आपको और पॉइंट्स इनके दिखाता जाऊंगा, आपने एक्सप्लेनेशंस जो है वो ओरली सुनते जाना है और बाद में इसको रीड करना है, तो इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, ब्रिटिश आल्सो एंडेड doctrine of lapse. Was doctrine of lapse the cause of war? Yes or no? Yes. As it was, yes, as it was cause of war, and Indians wanted to achieve this aim. Therefore, this announcement, yeah, this proclamation made Indians successful. Made Indians successful. This is the second success, because when British illegally grabbed the lands of the British, जब illegally British ने ना, देखिए doctrine of lapse was an illegal step to take over the lands of Indians. क्या illegal था इसके अंदर कि कोई भी बंदा Indians जो natural heir नहीं है, when they are not the natural heir of that any individual, rulers को ये allowed नहीं था कि उनकी बेटी, मतलब that was injustice to the Indian system कि कोई भी फीमेल रूलर जो है वो रूल नहीं कर सकती। ऑल्दो इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी क्वींस आ चुकी थी, अपने कंट्री के अंदर उनकी क्वींस अलाउड थी, लेकिन इंडिया में क्वींस अलाउड नहीं थी उसी टाइम पीरियड के अंदर। उससे पहले इवन उनकी क्वीन एलिजाबेथ थी, ठीक है। उसके अलावा उस टाइम पे जो है क्वीन मैरी थी इंग्लैंड के अंदर। क्वीन मैरी उस वक्त 1700s के अंदर क्वीन मैरी थी वहां पे, तो अपने कंट्री में वो अलाउड कर रहे थे, इंडिया में अलाउड नहीं कर रहे थे। क्लियर बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर ये क्या चीज अलाउ कर रहे थे? इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मैंने बोला ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इंडियंस के अंदर, इंडिया में कोई भी फीमेल रूलर वाज नॉट अलाउड टू रूल एनी स्टेट। तो अब मैं बता रहा हूं कि अपने कंट्री में तो उनके अलाउड था, लेकिन इंडिया में नहीं था। नेक्स्ट, another success of India was, another success was that she was that Indians had more right to say in government. Indians had more right to say in the government. गवर्नमेंट के अंदर इंडियंस के पास मोर राइट टू से। व्हाट डज इट मीन? कि मींस कि दे वर promised by the British to give more political rights, as Indians were promised to have। लेकिन सर उनको वो वूट वाली पावर्स नहीं मिल गई थी जो जिनका कोई जो जिससे वो कुछ कर सकते नहीं थे। हाँ, although कि that बेटा something is better than nothing, आपने ये कोटेशन तो सुनी होगी। जी सर। इसका क्या मतलब है कि कोई चीज जो आपके पास नहीं है और आपको वो मिल जाए, ऑल्दो कि आपको उसकी जरूरत ना भी हो इतनी ज्यादा, लेकिन स्टिल आपको मिल जाए, तो दैट इज समहाउ बेटर फॉर यू, कि कभी तो वो जिंदगी में काम आ जाएगी ना। तो इंडियंस का राइट टू से, ऑल्दो देयर वर नो एक्चुअल पावर्स इन द हैंड्स ऑफ इंडियंस, बट स्टिल on papers you can say कि Indians had participation. It was at least bringing them maturity. कम से कम उनके अंदर जब वो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट बनेगी, कम से कम उनकी अच्छी बातें तो सुनेंगे ना, या नहीं?
जब आप गवर्नमेंट का पार्ट होंगे, असेंबली में बैठेंगे, तो आप उनकी अच्छी बातें एटलीस्ट यू कैन लर्न फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द ब्रिटिश। लर्निंग तो आपकी होगी ना। चले और मैं मानता हूं कि कुछ नहीं था उनका, राइट टू से रियल पावर नहीं थी, बट स्टिल उन्हें ये तो पता चला ना कि कंट्री को रन कैसे करना है। ऐसा है ना? इज इट क्लियर? एक्सपीरियंस मिल गया, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेकनिंग वाज डन बाय दैट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? As Indians were promised to have more share in councils and civil services. Civil services. Hence, it was success as it gave political awakening to Indians. G online students, is it clear? Is it clear? All the success elements of success are clear to all of you? Yes, no? Yes, sir. जी बेटा, जल्दी से इसको फिनिश करें। आई एम मूविंग टुवर्ड्स द फेलियर साइड आफ्टर दैट। अवध के पीछे यस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी रीजन थी, और वैसे जनरली वहां पे अवध के अंदर जो है उन्होंने सब्सिडरी अलायंस का भी काफी ज्यादा रोल दिया। ठीक है, मल्टीपल पावर्स। वालेकुम अस्सलाम, अरफा लेट हो गई आप? जी सर, मैं वो बस घर पहुंचने में टाइम लग गया। अच्छा, चले तो अभी एंड पे मैं सारा दिखा दूंगा। अभी आप फेलियर से हमारे साथ लिखना शुरू कीजिएगा, जो अभी मैं पोर्शन स्टार्ट। ठीक है, अब बेटा फेलियर्स, if we talk about the failures of Indians in war of independence, if we talk about the failures of Indians in war of independence, beta, in the failure section, in the failures section, we have few things. Beta, failures के अंदर we have the first point कि Indians failed to get independence. Indians failed to get independence. Is it clear? Indians failed to get independence as British rule started in India. And India became, पहले बेटा इंडिया जो है वो ब्रिटिश इंडिया नहीं होता था, बल्कि इंडिया वाज जस्ट इंडिया, बट ब्रिटिश वर रूलिंग देम। बट नाउ ऑफिशियली दे मेड इंडिया एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। एम्पायर का पार्ट बन गया था इंडिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स थी। तो हाँ, पहले उनका रूल था, लेकिन वो कोई भी स्ट्रॉन्ग उसके पीछे एविडेंस नहीं था। बट नाउ देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस के अब इंडिया वाज नॉट इन इंडिया, इट वाज ब्रिटिश इंडिया। British rule started in India as India's name was British India now. British India. Therefore, their economic exploitation carried on for next कितने years हो रहे थे आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? कितने years ब्रिटिश इंडिया में रहे? 90 years. 90 years. Their economic exploitation by the British carried on till 1947. 90 years after war of independence. 90 years after मेगा जी बेटा, is it clear everyone? Next we have,
अब ये इंडियंस का फेलियर था। अब देखें, एक साइड पे इंडियंस चाहते थे कि उनको इकोनॉमिक लिबर्टी मिले, इकोनॉमिकली फ्री होना चाहिए ना, कि ब्रिटिश की तरफ से टैक्सेस ना हो, ब्रिटिश की तरफ से इकोनॉमिकली डिफिकल्टीज ना आए इंडियंस के ऊपर। क्या ब्रिटिश रूल का मेन मोटिव क्या था इंडिया के अंदर? क्या वो इंडिया के मामू के बेटे थे कि वो इंडिया में आके रूल कर रहे थे? Yes. Basically, British were interested in India because of its being golden sparrow for them. It was a golden sparrow for for British. ब्रिटिश कभी भी अपने हाथों से गोल्डन स्पैरो को नहीं जाने देना चाहते थे, बिकॉज दे कुड अर्न लॉट ऑफ इनकम फ्रॉम इंडिया। आप ये कह लें कि ब्रिटिश की वेल्थ का जो 70% पार्ट था, दैट वाज कमिंग फ्रॉम इंडिया। इवन आज के जमाने में भी हम कह दें कि ब्रिटिश की जो म्यूजियम है उसके अंदर जो रिसोर्सेज पड़े हैं, उसमें ज्यादातर रिसोर्सेज जो है इंडिया से उन्होंने चोरी किए हुए हैं। ठीक है, तो ये वेल्थ ऑफ इंडिया जो है दैट इज स्टिल फीडिंग द ब्रिटिश। अभी भी ब्रिटिश जो है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनकी तरफ से अगर आप देखें तो जो ये कैम्ब्रिज की CIE की जो रिसोर्स है, आई वाज जस्ट स्टडीइंग ए रिपोर्ट जिसके अंदर ब्रिटिश कितना अर्न करेंगे फ्रॉम द कैम्ब्रिज एग्जाम्स इन 1 ईयर। हाँ, अरब में है, कुछ 35-40 तकरीबन 20 अरब डॉलर्स। हाँ, 30 अरब डॉलर्स। हाँ जी, हर साल लेके जाते हैं वो। अब ये देखिए कि अब पहले वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करते थे, यहां से पैसा कमाते थे बाय डायरेक्ट वेज। नाउ दे आर अर्निंग इनकम बट थ्रू इनडायरेक्ट वेज। ठीक है, बट दैट इज अ लीगल वे। हम लोग अपने सिस्टम्स को इतना अच्छा बना लें कि हमें ब्रिटिश बोर्ड्स के एग्जाम ना देने पड़े। तो ब्रिटिश ने हमारे घर आके तो नहीं कहा कि आप बोर्ड के पेपर हमारे ओ लेवल्स करें या ए लेवल्स करें। तो आपका अपना एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा हो तो हम उनसे लिबर्टी ले सकते हैं। इंडिया ने जैसे ले लिया, इंडिया ने काफी हद तक लिया। इंडियन बोर्ड्स आर वेरी स्ट्रांग। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दिन बने थे, लेकिन इंडिया के अंदर सर ओ उधर जो लेवल्स 90% एजुकेशन है वो उनकी अपने बोर्ड्स में। अपने बोर्ड्स की है। आपको पता है कि कैम्ब्रिज जो है वो मार्च के अंदर एग्जाम सीरीज लेता है। एक मार्च एग्जाम सीरीज ओनली हेल्ड इन इंडिया। मार्च एग्जाम, जो मार्च के अंदर एग्जाम होते हैं वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, वो इंडिया में कैम्ब्रिज स्पेशल अरेंजमेंट्स करता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अलाउड ही नहीं करती। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने पेपर लेने हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं मार्च के महीने में। इफ यू वांट टू कैरी ऑन योर सिस्टम इन इंडिया, आपको मार्च में एग्जाम लेने। दे आर टेकिंग देयर एग्जाम्स इन मार्च। सर इसी वजह पाकिस्तान से वालों सुपर के पावर बन चुका है, पाकिस्तान अभी तक पीछे रहा हुआ है। पीछे रह गया। सुपर पावर नहीं बना। हाँ, ये देखो, ये बहस नहीं छिड़ जाएगी। नहीं यार, हम नहीं कहेंगे ऐसा। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे। नेक्स्ट, इंडियंस फेल टू गेट इंडिपेंडेंस हो गया हमारा। दूसरे नंबर पे मुगल एम्पायर एंडेड। मुगल एम्पायर एंडेड permanently from the map of the earth। भैजन, अब 1857 के बाद वो जो मैप में हमें छोटा सा मुगल एम्पायर नजर आता था, 1764 के बाद एक छोटा सा पार्ट नजर आता था ना हमें मुगल एम्पायर का, क्या वो मुगल एम्पायर अब दोबारा जिंदा रही? वॉज देयर एनी मुगल एम्पायर ऑन द ग्लोबल मैप? दुनिया के मैप के ऊपर मुगल एम्पायर कहीं पे भी थी इस सवाल के बाद? देयर वाज नो मुगल एम्पायर इन द वर्ल्ड। अब उस मुगल एम्पायर एज इंडियंस, ये क्या हो गया? वेट, अच्छा, एज इंडियंस could not as Indians could not revive Mughal Empire after 1857 War of Independence. Hence,
it was failure of. अच्छा, आपकी हर पैराग्राफ जो सक्सेस और फेलियर का बेटा पैराग्राफ होता है, हर सक्सेस और फेलियर का जो पैराग्राफ आपका होता है बेटा, यू पीपल मस्ट राइट सक्सेस और फेलियर के पैराग्राफ्स के अंदर आपने याद रखना है कि हमेशा वर्ड सक्सेस मेंशन होना चाहिए और वर्ड फेलियर मेंशन होना चाहिए। इज इट क्लियर? डन बेटा? एक और फेलियर, बड़ा फेलियर था इंडियंस का इस वॉर के अंदर। दैट फेलियर वाज कि ब्रिटिश blamed Indians for war of independence। स्पेशली किस कम्युनिटी को ब्लेम किया था? स्पेशली मुस्लिम्स, even share in army was reduced, even share in army was reduced, hence they were considered suspicious even in their own country। Is it clear, everyone? Hence it was, बस ठीक है, hence नहीं है तो therefore it was a failure of, therefore it was failure of Indians, therefore it was failure of Indians। चलिए अब मैं आपको एक चीज चेक कराता हूं। मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर वो सक्सेस का एलिमेंट है, इफ दीज पॉइंट्स आर सक्सेस, इसमें चेक करता हूं कि क्या उसमें मैंने सक्सेस का वर्ड कहीं पे, मैंने अब इंटेंशन आपको एंड पे बताई है। अब कहां पे जो है वो जो मेरे सक्सेस के पैराग्राफ्स हैं, क्या उनमें सक्सेस का वर्ड है? ये चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं पे मैंने वो लाजमी, कहीं पे मैंने लाजमी वो वर्ड सक्सेस ऐड किया होगा। ये अनइंटेंशनल, मेरे राइट अप में ये अनइंटेंशनल होगा, क्योंकि whenever there is a question based on success and failures, मेरी इंटेंशंस ही अब ऐसे बन गई हैं कि वो ऑटोमेटिकली मैं उसको फेलियर की तरफ ले जाता हूं या सक्सेस की तरफ ले जाता हूं। तो बेटा ये जो जस्टिफिकेशन ऑफ सक्सेस और जस्टिफिकेशन ऑफ फेलियर है, ये आपकी जरूरी है। You need to clearly mention the word success and you need to clearly mention the word failure in your answer। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? Is it clear to all of you? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो अब इस क्वेश्चन को, हाउ सक्सेसफुल क्वेश्चन के लिए नोट क्या होना चाहिए आपका, ये मैं क्लियरली आप लोगों को बता रहा हूं। मैं दोबारा भी बताता रहूंगा, लेकिन आपने कोशिश करें कि एक ही दफा सुन के यू नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुल। नोट क्या है? इन एवरी हाउ सक्सेसफुल क्वेश्चन, how successful question, beta which two things must be mentioned? Word success and failure must be mentioned। Is it clear, everyone?
Is it clear to all of you? Word success and word failure must be mentioned. Yes, sir. ठीक है? Please justify your success or failure. Please justify how each point is a success or failure. बच्चों, ये आपका ये जो इस फ्राइडे का टेस्ट था उसमें ये चीज लैग कर रही थी. इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आपके फ्राइडे के टेस्ट में क्या चीज लैग कर रही थी कि कुछ बच्चों के आंसर में सक्सेसफुल का वर्ड नहीं था, फेलियर का वर्ड नहीं था, कुछ जगहों पे जस्टिफिकेशन फॉर सक्सेस नहीं थी, कुछ जगहों पे जस्टिफिकेशन फॉर फेलियर नहीं थी. मतलब पॉइंट लिखा हुआ था, पॉइंट वाज करेक्ट. मैं देखिए कि मैं पॉइंट किसी का गलत नहीं करता, पॉइंट्स करेक्ट होते हैं, लेकिन जब तक वो कंप्लीटली जस्टिफाइड नहीं होते एज ए सक्सेस तो आपको नंबर जस्टिफिकेशंस के नहीं मिलते. मींस आपके 8 या 9 नंबर तो आराम से आ जाते हैं बेटा. 8 to 9 मार्क्स हुए हैं वो आपके नॉलेज से भी बन जाते हैं. नॉलेज 8 to 9 मार्क्स देता है, लेकिन जस्टिफिकेशंस आपको 11 to 12 to 13 मार्क्स तक लेके जाते हैं. इज इट क्लियर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर बेटा? यस सर. यस नो? यस सर. तो ये बेटा कोई भी बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले ले और प्लीज ग्रुप में सेंड कर दे ताकि जो आज नहीं आ सके वो भी आ जाए और वो भी लिख लें. यस बेटा? बेटा 25 को बन रहा है, 6 को डेटशीट आ गई है, अभी फाइनलाइज नहीं आई. फाइनल आएगी अभी, अभी फाइनल नहीं आई, लेकिन फाइनल आ जाएगी तो मैं वो आपको शेयर करूँ. अभी फाइनल नहीं है, वो चेंज हो सकती है. उसके अंदर ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश काउंसिल वाले जो है वो चेंजिंग्स करते हैं समटाइम्स. ठीक है, अरफा ने सेंड कर दिया. चले मैं इसको ना क्लोजली एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. ये सवाल ये रिजल्ट्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा कोई क्वेश्चन है आपका? ये एक सवाल मैंने कराया, मैंने आज जानबूझ के सिर्फ स्लो इसलिए कराया कि आज मैं आपको लिखने की एक वो क्या उसे कहते हैं कि तरीका बता रहा था. आई वाज जस्ट इनडायरेक्टली आई वाज डिस्कसिंग योर मंथ वीकली जो टेस्ट देते हैं आप, मैं वो इनडायरेक्टली डिस्कस कर रहा था. ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर हाउ टू राइट? यस सर. डन हो गया? Sir, I have a question. यस बेटा. यस Sir, जो source A का question होता है हम उसको as it is लिख सकते हैं? बेटा एज इट इज अगर पूरा सोर्स लिखेंगे तो फिर आपको नंबर ही नहीं मिलेगा उसका. आपको सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स लिखने हैं ज़ैनब. ठीक है? Okay, sir. Wording can be the wording of those points which you are writing from the source, that can be same. ठीक है ज़ैनब? Yes ठीक रुबाब? है, sir. Yes रुबाब? अरवा? How can we score full in a 5-mark question? When you will write answer in 2 paragraphs and there must be 3 things in your answers. The first thing is the proper description of the point from the picture. Picture description must be very sound picture description. ठीक है? फिर उसके बाद there must be valid inference which must be linked to the question statement. और बेटा जो उस क्वेश्चन के पीछे जो बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन है, वो क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए. ठीक है? Is it necessary to have 2 paragraphs? You can write. देखिए it depends sometimes बच्चों का आंसर एक पैराग्राफ में वो 2 इन्फ्रेंसेस और 2 डिस्क्रिप्शंस और 2 कंटेक्चुअल नॉलेज फुली एक्सप्लेन कर देते हैं, तो डेफिनेटली वो एक पैराग्राफ की बेस पे भी आपको मिल जाते हैं. लेकिन समटाइम्स जो है आपकी 2 इन्फ्रेंस, 2 डिस्क्रिप्शंस और 2 कंटेक्चुअल नॉलेज के पॉइंट्स जरूर होने चाहिए. यू कैन राइट इवन इन 1 पैराग्राफ, लेकिन वो 2 चीजें होंगी. क्लियर?
Okay, thank वरना you. otherwise when you will write 1 point तो you will be able to get maximum of 4 marks, not 5. लेकिन अगर हमने 2 हाँ। भी लिखे हैं तो 4 क्यों आते हैं? मैं वही बात बता रहा हूँ, 2 लिखे हैं, मैं अगर बता रहा हूँ जो पहला इसमें लेवल मार्किंग होती है, लेवल 3 इज द हाईएस्ट लेवल, इज इट क्लियर? लेवल 1 में आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है, लेवल 1 में क्या आ गई? डिस्क्रिप्शन। लेवल 2 में आपकी आ जाती है इन्फ्रेंस। लेवल 3 में आपका आ जाता है उसका कंटेक्चुअल नॉलेज। रुबाब, if you have point here, लेवल 3 पे आपका पहला पॉइंट, पहला पैराग्राफ अगर आपका लेवल 3 पे आ गया, उसमें ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से लिखी हैं आपने, और आपका पहला पैराग्राफ ही लेवल 3 अचीव कर गया, तो आपको पहले पैराग्राफ की बेस पे लेवल 3/4 मिल जाएगा। फिर आप दूसरे पैराग्राफ लिखेंगे, और अगर वो भी लेवल 3 पे हुआ और उसमें भी ये 3 चीजें हुई, उसका भी 1 नंबर है, उसका लेवल 3/5 हो जाएगा डायरेक्ट। सर तो मतलब पहला जो पॉइंट है, दैट पॉइंट हैज 4 मार्क्स, द अदर पॉइंट हैज 1 मार्क। तो पहला पॉइंट आपका बेस्ट एक्सप्लेन्ड विद प्रॉपर डिस्क्रिप्शन एंड कंटेक्चुअल नॉलेज होना चाहिए। सर डन? यस बेटा। सर ये जो हम पास्ट पेपर्स वगैरह जो